Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Rosina Rafiq and I will teach you social studies for class 6. Okay बेटा, अब तक हम I will explain you all syllabus I will read in the month of June and July. Okay? And then in the month of June we will explain chapter number 3 and introduction of South Asia. ज्योग्राफी का ये पार्ट है हमारा. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा, व्हाट डज सार्क स्टैंड फॉर एंड व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड. सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. इट वाज फॉर्म इन 1985 at a meeting in Dhaka, Bangladesh, to develop cooperation. Okay? And then question number 2. Name the countries of South Asia and their capitals. Countries के नाम put करने हैं and फिर their capitals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 मार्किंग करनी है आपको. 7 countries के नाम put करने हैं. पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स एंड देयर कैपिटल्स. क्वेश्चन नंबर 3. नेम सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ साउथ एशिया. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ साउथ एशिया आर एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशिंग, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्री, labor, trade and services. Question number 6. In what ways can education help people? The answer is education can help people to analyze the situation in the world and change accordingly. Okay? In this chapter we will explain you 1, 2, 3, 4 questions. And then in this month we will read chapter number 7 and ancient South Asia, part of history. Question number 1. What is meant by the Indus Valley civilization? What do you know about its important cities? Indus Valley civilization. The Indus Valley civilization exists in the plains of the Indus River for around 3500 BC to 1500 BC. Mohenjo-daro and Harappa were two important cities of this civilization. ओके. एंड देन मोइंजोदारो. दोनों सिटीज़ के बारे में हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे. पहले हमने इंडस वैली के बारे में एक्सप्लेन किया एंड देन हम टू सिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन इज मोइंजोदारो. मोइंजोदारो वॉज अ प्लेन सिटी. इन दिस सिटी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सिटी वर ग्रेट बाथ, स्टोरेज हाउसेज for grain and a grain place. Second one is Harappa. Harappa was quite similar to Mohenjo-daro, but some of the houses were made of mud instead of bricks. ये थोड़ा सा इन दोनों सिटीज़ के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ के जो घर बने हुए थे वो ब्रिक्स इसमें नहीं थे, जबकि मोइंजो-दारो एक प्लेन सिटी था. ठीक है, सोचे समझे मंसूबे के तहत बना था. क्वेश्चन नंबर 3. हु फाउंडेड बुद्धिज्म? व्हाट वर द टीचिंग ऑफ देयर रिलीजन? प्रिंस सिद्धार्था फाउंडेड बुद्धिज्म. ही वॉज नोन एज द गौतम बुद्ध. बुद्धिज्म टीच इट फॉलोअर्स टू फाइंड एन इनर पीस कॉल्ड निर्वाणा. एंड देन इसकी टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैं 4 इसकी टीचिंग जो थी. नंबर 1, सफरिंग इन द मोस्ट कॉमन थिंग्स इन लाइफ.
This suffering has a case. This suffering can be indeed and nirvana. There is a path to attain nirvana. Question number 4. Who was Alexander the Great? What was the effects of his invention of South Asia? Alexander the Great was a ruler of Macedonia, a small state in ancient Greece. He also invaded South Asia. The invention of Alexander the Great introduced the people of South Asia to Greek thought, knowledge and art. Third chapter is chapter number 1, Human Rights. Civics part का है. Question number 1. What are human rights? Those rights which must be granted to all human beings are called human rights. जो तमाम बनीनो इंसान के लिए जो हुकूक होते हैं उन्हें हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं. 3. Question number 3. What did the Holy Prophet, peace be upon him, teach us about human rights? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानी हुकूक के बारे में क्या टीचिंग दी है? The Holy Prophet, peace be upon him, taught us to respect other peoples. In a famous sermon before his death, the Holy Prophet, peace be upon him, told his followers that all human beings are equal and no Arab is superior to a non-Arab superior to an Arab. यानी किसी को किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, किसी अरब को किसी गैर अरब पर, किसी अरब को अजम पर, किसी अजम को अरब पर कोई भी फौकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा. Question number 4. What is the Universal Declaration of Human Rights? Why it is important? In 1948 AD, the member countries of the UN agreed upon a list of about 30 human rights. This list of rights in the Universal Declaration of Human Rights. Last question is, how is terrorism defined? Terrorism is defined as the use of violence in order to create fear among citizens. Human rights जो है वो terrorism जो है वो वायलेंस के लिए यूज़ होता है. वायलेंस सिटीज़न में, लोगों में वायलेंस के लिए यूज़ की जाती है टेररिज्म की डेफिनेशन. चैप्टर नंबर 3 एंड इंट्रोडक्शन टू ऑफ साउथ एशिया. इससे रिलेटेड हमारे ट्रू फॉल्स हैं, इसी से रिलेटेड हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ठीक है. चैप्टर नंबर 7, इसमें हमने किए fill in the blanks and identify the following. Human rights. Human rights में हमने किए fill in the blanks and name the person who. Done? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं अब आपको समझाऊंगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने आपको करवाई है मैप. Fill the 7 countries of South Asia in the map of South Asia. Fill the 7 countries of SAARC in the map of South Asia. मैंने आपको इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले आप साउथ एशिया का मैप खरीदेंगे और मैप में जो जगह होगी 1 2 3 4 5 6 7 आप नंबरिंग लिख देंगे, उसके आगे आप 7 कंट्रीज के नेम्स पुट करेंगे एंड देन छोटे छोटे से बॉक्सेस आप ड्रॉ करेंगे और उस बॉक्सेस में वो कलर डालेंगे आप जो कि आपने पाकिस्तान का डाला है. इस बुक में येलो है पाकिस्तान का, जबकि हम येलो नहीं डालेंगे, हम कौन सा डालेंगे, हम ग्रीन डालेंगे. जैसे कि देखें इस कॉपी में पाकिस्तान ग्रीन, इंडिया येलो, नेपाल ऑरेंज, भूटान पर्पल, बांग्लादेश रेड ले लें आप. ठीक है. श्रीलंका
लाइट ऑरेंज। और यहाँ पे मालदीव ड्रॉ नहीं होगा, आप पॉइंट के जरिए से ड्रॉ करेंगे और उसमें आप अपनी मर्जी का कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन वही कलर आप यहाँ बॉक्स में छोटा छोटा सा ड्रॉ करेंगे और वो कलर उसमें पुट करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर टेस्ट। ओके, आज आपको मैंने आज की क्लास में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की। आज मैंने आपको ऑल ओवर जितना भी हमने सिलेबस जून एंड जुलाई में किया है, मैंने सब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और यकीनन आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी कि इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, तो आप इसमें से कौन कौन से याद करने हैं, इसमें 3 क्वेश्चन हैं तो कौन कौन से याद करने हैं, और इसके भी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज करवाई एंड देन मैंने सबसे इम्पोर्टेंट वर्क आपको साउथ एशिया का मैप जिसमें हमने 7 कंट्रीज पुट किए थे, मैंने आपको वो समझाया। ठीक है, थैंक यू।